करके सब हो गया गायब, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया गायब, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। क्या बात। हिंदी में दीजिए, संस्कृत में दीजिए, या अरबी में दीजिए, या उर्दू में दीजिए, या फारसी में दीजिए, नाम एक ही है, स्वर्ग है या जन्नत है। फिर वो मकाम इस इंसान को नसीब होगा, तो हमें भी ऊपर वाला वो मकाम नसीब फरमाए। और हमारी हमसे पूछ होगी कि अगर हम जानते थे, हम उसके बारे में अगर थोड़ी बहुत मालूमात रखते थे, हमने एक दूसरे तक कितनी वो पहुंचाई, क्योंकि इस बारे में हमारी पूछ होगी। तो इन्हीं अल्फाजों से मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। Mushtaq Ahmed Bhatt sir, head of the department person and convener of the today's one-day UT level seminar on impact of fasting on mental, spiritual and physical well-being. So we have a session of bouquet distribution, but we don't have with us dignitaries as of now. Once they come, we're going to start the bouquet distributions as well. So moving to the next session, afternoon session, where the house is open for the competition, debate and discussion. But before we start the competition, I'm going to announce the today's judges. I request Professor Sandeep Kotwal, Dr. Sandeep Kotwal, Assistant Professor, Department of Botany, to kindly please stay with us as judge. Second is we have with us Professor Qasim from the Department of Geography, Assistant Professor Geography. Second judge with us, Professor Qasim. Please give big applause to him also. We also have with us Dr. Irshad Ahmed Wani from the Department of Chemistry as the third judge of today. So you kindly please divide this into content, presentation, and language. One of the judges will look into the content part, another will look into the linguistic part, and the last one will look into the presentation part. And the results will be in charge will be Professor Sandeep Kotwal sir to collect the results in the end and give it to us. Thank you. This will be started by a lecture. We have with us Professor Rahul Uttam, head of the Department of Mathematics. He will be delivering his lecture on the impact of fasting on spiritual being. Please welcome sir. Of history. We have a special lecture by Dr. Masood Iqbal, Nodal Officer Immunity, hosting Ayush. He's got to deliver his lecture on medical benefits of fasting. So before he comes over here, I request Dr. Riaz Ahmed, Head Department of Arabic, to present a floral welcome to Dr. Masood Iqbal. Welcome, sir. Floral welcome, please. Dr. Masood Iqbal, sir. So ours 15 minutes. Try to concise your speech within 15 minutes. Thank you. सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 4 में है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी, हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर वो उनकी उसी ज़बान में उनका कोई पैगाम पहुंचाता। तो श्लोक नंबर 23 चैप्टर नंबर 16, यम शास्त्री मुस्तजबत का मकार कहा ना सासिदी ना उपलोकी ना सुखाम ना परामदी। जो मनुष्य, जो मुसलमान नहीं, जो हिंदू नहीं, जो मनुष्य, जो इंसान, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करेगा, न सिद्धि को, न परम गति को, न सुख को प्राप्त करेगा। सुखी कहां होंगे? सुख ढूंढ रहे हैं। गीता तो स्पष्ट कह रही है, क्या कह रही है कि जो मनुष्य शास्त्रों को छोड़ देगा, आज हमने शास्त्रों को छोड़ दिया, जब शास्त्रों को छोड़ दिया तो सुख नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, इन भेदों से व्रत 3 प्रकार के होते हैं। जिस व्रत का आचरण सर्वदा ऑलवेज के लिए आवश्यक है और जिसके न करने से मानव दोषी होता है, वह नित्य व्रत है। जैसे यहाँ कंपल्सरी, अगर आप देखेंगे कि आम मुस्लिम जो रोजा रखते हैं वो ऐसे रोजा रखते हैं कि मतलब रमजान से पहले शुरू कर देते हैं उसके वेलकम के लिए, लेकिन वो कंपल्सरी नहीं होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी कहा गया है कि कुछ कंपल्सरी रोजे होते हैं, जैसे कंपल्सरी यहाँ पे व्रत लगाए उसको क्या कहा जाता है, उन व्रतों को क्या कहा जाता है, नित्य व्रत। उसके साथ साथ वो व्रत तभी कंप्लीट है जब उन व्रतों में सत्य बोलना, पवित्र रहना, इंद्रियों का निग्रह कंट्रोल करना, क्रोध न करना, अश्लील भैद भाषा न करना और परिंदा भेदभाव न करना आदि नित्य व्रत है।
और उनके रोजे भी कंप्लीट नहीं है अगर वो बैक फाइटिंग करेंगे। कुरान ने तो ये तक कहा है कि तुम में से कौन अपने भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा, मुर्दे भाई का। तो आप बताओ, ये चीज तभी पॉसिबल है जब हमारे सोच एक है, जब हमारा सोच एक है। ज्ञान वही है जो सदा से चलता है, चेंज नहीं होता। मारी कर वही ज्ञान वहां दूसरी भाषा में भेजा, इस जगह जब पैगंबर आए, पैगंबर चेंज हुए। On such a wonderful platform, having a golden opportunity in the hand to be expressed, the essential feature on the impact of fasting on the mental, spiritual and physical well-being. Before beginning to speak, I would like to welcome to all the dignitaries and judges of the day with the words of poetry. किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? As we all know that fast doesn't mean only to refrain from eating, drinking. It also covers the other wide areas. The genesis of fast have been traced back to the ages when our ancestors followed it the most priority of their religion. Gradually, with the passage of time, such concept reached our life and we began to practice it. While observing the fast, Allah said categorically in the Quran that your body will begin to witness infirmity, clumsy, lackadaisical approach, but don't feel infuriated about the situation. I am the King of the universe, grant you better than that. Merely in the Islam has such kind of things to be followed. Each religion which exists on the planet follows such kind of procedure. It is like that. They have different procedure to be followed. Like we have Jainism, Christianity, Hinduism, Sikhism. Every religion prescribed is the most important duty for the people to be followed in order to refrain from doing major sins. While observing the fast, we begin to refrain from the major sins like the amount of backbiting, the amount of hatred, the amount of discrimination, the amount of exploitation, being communist, backbiting, eavesdropping. These are the things which we get to know that how to refrain them from the life and try to apply a part of. इस स्टेज में किसी ने कहा है, जितनी चाहो उठाओ दीवारें, आओ मुझ पर गिराओ दीवारें, ये बच्चे बचपन में न बट जाएं, खुदारा इनको न सिखाओ दीवारें। एक बच्चे की वो एक्साइटमेंट आपसे बता दूं, पापा से बोलता है कि पापा आप तो इस डोर से पतंग को नीचे के लिए खींचते हो, आप मुझे बताओ ये पतंग ऊपर कैसे जाती है? उन्होंने कहा बेटा जो इसको डोर लगी है ये इसी की वजह से ऊपर उठता है। बच्चे ने कहा आप तो इसे नीचे खींच रहे हो, ऊपर कैसे जा रहा है? बाप तो ज़हीन था, उसने धागा काट लिया, थोड़ी देर पतंग उड़ के किसी नाले में गिर गया। कहा जब तक ये डोर इसके साथ लगी है, जब ये तक ये मेरी कंट्रोल में है, तब तक पतंग उड़ेगी। जब ये डोर से कट जाएगा, ये किसी गंदी नाले में गिर के तबाह बर्बाद हो जाएगा। जब तक एक फल, एक सेब अपने दरख्त और अपनी टहनी के साथ जुड़ा होता है, तब तक वो तरोताज़ा होता है। जब उससे गिर जाता है तो उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है। प्यारे बच्चों, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
यकीन कीजिए, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे ईडी साहब की सदाए बाज गश्तिन का ईको सुनाई देता था। हमें बच्चे कहते थे, यहाँ पे दिलमीर साहब हुआ करते थे जिन्होंने बैक्टीरिया में नज्म लिखी थी। यहाँ पे पंकज सर की बातें होती थी, वो गालिबन शायद 2004 बैच के या 8 बैच से हैं। तो ये जो यहाँ पे सिलसिला चला आ रहा है भद्रवा कॉलेज का, ये बड़ा रिच है। यहाँ हमें कोई ऑड और इवन चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी। यहाँ से हम बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और आई थिंक जो आज का प्रोग्राम प्रिंसिपल साहब ने जो सुबह यहाँ पे सरेंडर की बात की, और इवन आई नॉट सरेंडर, आई सरेंडर माई एवरीथिंग, इतनी बड़ी बातें हैं। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, ये बच्चों के लिए यहाँ पे करोड़ों का पैसा गवर्नमेंट खर्च आती है। तो ये बच्चों की नशो नमा के लिए जब तक आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने रोजा जो है ये किसी न किसी तरीके से राइज रहा है। हर मजहब का, हर इलाके का, हर गोशे का से ताल्लुक रखने वाला इंसान जो है वो रोजा किसी न किसी तरीके से रखता है। और उसका मकसद यही है कि हमारा जो अंदरूनी इंसान जो है उसकी प्यूरिफिकेशन हो, वो साफ हो, वो शफाफ हो। जिस तरह इंसान मादरे रहमे मादर से बाहर आता है, उसी तरह इंसान जो है साफ और शफाफ होके उसकी तरफ लौट जाए। क्योंकि लौटना तो सबने है, वापस तो सबने जाना है। ये मालूम नहीं हम आज इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, शाम तक हमें सांस नसीब भी हो सकती है या नहीं हो सकती, किसी को मालूम नहीं। लेकिन हम कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं उसी के पास जा रहे हैं जहां से हमें लाया गया है। हम उसी असल की तरफ जा रहे हैं। ए लोगों तुम पर, ए इंसानों, ए मानने वाले, भगवान के मानने वालों से कहा जा रहा है जो भगवान को मानते हैं। वो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, सभी मानते हैं। मानने वालों को कहा जा रहा है तुम पर रोजे जो हैं वो फर्ज किए गए हैं, यानी तुमने रोजा रखना ही रखना है। जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर, या जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर ये फर्ज थे, जिस तरह वो रखते थे उसी तरह तुमने भी ये रोजा रखना है। इससे तवक्का है कि तुम में तकवा की सिफत पैदा होगी। तकवा का मतलब यही है कि हमारा जो ताल्लुक है, जिस तरह हम अपना ताल्लुक जो है ऑफिसर के साथ जोड़ते हैं और फिर जो भी हम ऑफिसर से डिमांड करते हैं वो ऑफिसर जो है इनकार नहीं करता है, वो ताल्लुक हमने उसके साथ जोड़ना है। फिर जो हमारी अर्ज होगी, जो हमारा सवाल होगा वो रद्द नहीं होगा, क्योंकि वो कहता है, ऊपर वाला कहता है कि जब पुकारने वाला, जब मांगने वाला, जब सवाल करने वाला मुझसे सवाल करता है, यानी उस जात से सवाल करता है जिससे हम परमात्मा के हैं, जिससे हम बाकी नामों से याद करते हैं, जब मुझे पुकारा जाता है मैं इस बंदे की पुकार सुनता हूं, इसका सवाल सुनता हूं, इसकी अर्ज सुनता हूं और उसको कबूल करता हूं और उसको जवाब भी देता हूं। मगर उसके लिए शर्त यह है कि वो मेरा हुक्म माने, वो मेरी बंदगी करे, वो इंसान की बंदगी ना करे, वो इंसान के सामने ना झुके। झुकना अगर है उसके सामने झुकना है, उसके लिए शर्त है वो मेरा हुक्म माने और मेरे रास्ते पर चलें। ये वादा है कि मैं इंसान की जो सांस वाली रग है, जो शाहरग है, उससे भी मैं करीब हूं। जब भी ये बंदा मेरे करीब आता है मैं इसकी सुनता हूं और फिर मैं इसको नवाजूंगा, जो इसका असली इंसान जो है। तो लक्ष्मण जो थे उन्होंने सीता माता के सिर्फ पांव देखे थे, ये तकवा था, यही तकवा होता है। उन्होंने अपनी भाभी का कभी चेहरा नहीं देखा था, दिस इज तकवा, या आप इसको रेस्ट्रेंट कहें या इसको आप परहेजगारी कहें। एक एग्जांपल, हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने इंडिपेंडेंस डे के लेक्चर में शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक किस्सा बयान किया था कि जब वो बच्चे थे, तकरीबन 4 साल के थे या 6 साल के थे, और एक काफले के साथ जा रहे थे। उस काफले को चोर लूटने के लिए आ गए, पूरे काफले को लूट लिया। अब जो डाकू चोर, जो उनका जो सरदार था, हेड था, उसने इस बच्चे को कहा आपके पास कोई पैसा है? इस
उसने कहा हाँ मेरे पास है। तो वो परेशान हो गया कि तेरे पास कहाँ पैसा? उसने कहा हाँ मेरे पास 40 दिरहम है, उस कंट्री की इराक की करेंसी तब दिरहम थी। कहाँ है? उसने कहा मेरी कमीज के अंदर से मेरी माँ ने सिले हुए थे। और जब उसने ये सच सुना बच्चे से, उसने कहा कि आपको तो पता है कि हम डाकू हैं, फिर क्यों सच बोल रहा है? उसने कहा मुझे मेरी मदर ने कहा है कि झूठ कभी नहीं बोलना। उसके उस एक सच कहने से सारे काफिले का माल जो वापस मिल गया और डाकू वहां से तौबा करके चले गए। दिस इज तकवा। जापान में सुनामी आ गई और वहां साफ पानी पीने के लिए नहीं था। वहां एक स्टोर जो है साफ पानी का बचा हुआ था। लोग पानी के लिए तरस रहे थे, लेकिन एक जो पानी का स्टोर था उसका शटर खुला पड़ा था, कोई वहां से जाके पी नहीं रहा था और पानी का कोहराम मच गया था। फिर किसी ने कहा भाई आपके पास तो पानी का स्टोर पड़ा है, क्यों नहीं पी रहे हो? उसने कहा नहीं, इसका जो ऑनर था वो सुनामी में उसकी डेथ हो गई, हम ये पानी नहीं पी सकते। दिस इज तकवा, यही तकवा है। अभी एक मतलब हम तो रिलीजियस हैं और हम ये वर्ड कोट करते हैं, चाहे हम मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, एशियन कंट्रीज के, लेकिन यूरोप में ये प्रैक्टिकली है। हम रिलीजियस हैं लेकिन उन्होंने रिलीजन वैल्यूज को अपने सिस्टम में लाके दिखाया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ग्रामी कदर आफ्ताब आलम मीर साहब, ASP भद्रवाह, डॉक्टर मसूद साहब, डॉक्टर अरशद साहब BDO, प्रोफेसर उमरदीन साहब, प्रोफेसर मनाज साहब, प्रोफेसर सुरेंद्र जी, प्रोफेसर काटल साहब, प्रोफेसर दिगर सभी प्रोफेसरान, क्योंकि वक्त की किल्लत है, मीडिया से आए हुए हजरात, सिविल सोसाइटी से आए हुए अफराद, दिगर तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व आदाब। उम्मीदें कवी है बारगाह रिसालत में कि जो हमने आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे हम सभी को जो यहां मौजूद हैं फायदा होगा। क्यों? क्योंकि हम सभी इंसान हैं और इंसान जो है उसकी असल, उसकी जड़ जो है, या कहेंगे इंसान का जो बाप है वो एक ही है। अब इंसान अपने बनाने वाले को, अपने खालिक को, अपने मालिक को, अपने राज़िक को या अपने फरमानरवा को मुख्तलिफ तरीकों से उसकी परस्तिश करता है, उसकी पूजा करता है या उसकी बंदगी करता है या उसकी इबादत करता है। तरीके अपने अपने हैं, लेकिन बुनियादी मकसद यह है कि सभी अपने पैदा करने वाले को मानते हैं और मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा बनाने वाला है और हम उसके सामने जवाबदेह हैं। हमारी बाजपुरस होगी। ये इंसान जो है खालिक कायनात ने इसको दो चीजों से मुरक्कब बनाया है, दो चीजों से इसको बनाया है। एक इंसान का जाहिरी, जिससे हम बदन कहते हैं, जिससे हम जिस्म कहते हैं, और दूसरा इसका बातनी हिस्सा है जिससे हम रूह कहते हैं या जिससे हम जान कहते हैं। प्रॉफिट आया, वहां की भाषा उसी भाषा में पैदा किया गया। जैसे अगर अरब में, संस्कृत भाषा में यही श्लोक वहां पे पढ़ा जाता, संप्रेक्षण नासिका ग्रम सोम दिशा श्लोक लोकाय। वो लोग उठते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं हमें समझ नहीं आएगा ये क्या बोल रहे हो आप, हमें क्या पता आप कौन सी भाषा में पढ़े, क्या चीज बोल रहे हो। फिर कहा इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान अरबी में इसलिए नाज़िल किया ताकि तुम
हो, अगर फिर कुरान यहाँ नाजिल होता हजारों साल पहले, यहाँ की भाषा संस्कृत थी, तो वही सवाल यहाँ के लोग करते कि यहाँ तो संस्कृत भाषा हमारी, ये कौन सी भाषा में आपने हमें ये ईश्वर का जो है ग्रंथ में थोड़ा। नेक्स्ट प्लीज। देवेंद्र के अर्थात पुष्काल सूर्योदय से 2 मुहूर्त पूर्व उठकर स्नान आदि करके प्रातः काल में निश्चय करके व्रत का आरंभ करें। मतलब वही जो ट्रेडिशन अगर आप देखेंगे पहले से हमारे जितने भी जो हिंदू भाई हैं, जब भी वो रोजे का फास्ट का आगाज किया करते हैं, आज भी कैसे हो गए, तो वो 4 बजे उठ के पहले स्नान करते हैं, उसके बाद आगाज किया जाता है। तो ये इसी तरह से पाकीज़गी की तरह कि आपको जो शुद्धि है वो कायिक, वाचिक और मानसिक 3 तरह की शुद्धि है। बॉडी की मीन्स बॉडी की शुद्धि अभी तक हमने सुना था जुबान की, तो वो हो गया बैक बाइटिंग जिसने हमने बताया वही चीज, कायिक, वाचिक और मानसिक। अब हम मानसिक की तरफ अभी पहुंचे नहीं, आगे नेक्स्ट प्लीज। एक मनुस्मृति है, उसमें लिखा है सावधान चित्त 4 ग्रस प्रातःकाल तथा 4 ग्रस सूर्यास्त होने पर 1 मास तक प्रतिदिन भोजन करे तो यह शिशु चंद्राणी व्रत कहा गया है। इस व्रत को महाविष्णु ने सब पापों के नाश के लिए किया था। अगर आपको मैं अभी याद दिलाऊं कि बुखारी शरीफ की एक हदीस है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोजे रखेगा, रोजे इस तरह से रखेगा कि उसके जो पिछले गुनाह माफ कर देंगे। तो यहाँ पे भी वही बात बताएगी कि जब अगर आप निश्चय कर दोगे कि पुरानी चीजों को आप नई लाइफ स्टार्ट करोगे, तो आपकी जो पुरानी चीजें हैं, पहले जो पिछले गुनाह वो माफ कर दिए जाएंगे। वही बात यहाँ पे बताएगी। नेक्स्ट विष्णु पुराण। Go head वाली mic को। Other staff members, first of all, I would like to introduce you myself. I had been a teacher for 3 years ago, and at this time I am running in 81 from 16th of January 2002. But in this seminar, I heard many things and I learned many things from the students and the scholars and the professors. But one thing is there which is in my heart that I want to convey you, that what is the crux of these seminars. What does the Ramadan teaches us? That are the only 2 minutes for that. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said about the personality of the man, that man arfa nafsahu faqad arfa rabbuhu, जिसने अपने आप को पहचाना उसने उस ऑलमाइटी को पहचाना। एंड अपने आप को पहचानना क्या है? अपने आप को पहचानना क्या है कि भाई व्हाट आर माय ड्यूटीज, व्हाई आई हैव बीन सेंट टू दिस यूनिवर्स ऑन दिस अर्थ। मुझे किस लिए भेजा गया है? क्या सिर्फ खाने पीने के लिए? क्या दूसरों के हकूक को सर्व करने के लिए, या अपनी डिग्निटी को शो करने के लिए? नहीं, इसलिए अपने नफ्स को पहचानना ये है, व्हाट आर माय ड्यूटीज, मेरे फराइज क्या हैं और मेरे हुकूक क्या हैं। और ये सिर्फ 2 चीजें हैं, हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह। और वो कौन से हैं? एक तो अल्लाह के हक में, वो सभी लोग अदा करते हैं अपने अपने तौर से हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक। कोई नमाज पढ़ता है, कोई पूजा करता है, कोई और किसी तरीके से उसको याद करता है, उसने उसका हक अदा कर लिया उस तरीके से। लेकिन हुकूकुल इबाद हम अदा नहीं करते। हुकूकुल इबाद क्या है? मैं टीचर हूं,
मैं रोजी ले रहा हूँ, मैं खाना ले लेता हूँ, मुझे नौकरी है, मुझे पैसा मिल रहा है और मैं ये कितना हक अदा कर रहा हूँ बच्चों के साथ, क्या मैं वहाँ पार्शलिटी तो नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। साहिब सदर तशरीफ फरमा, मौजूद मेहमानान, उस्ताद इकराम, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद ये उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बहुत नाज़रीन, आपने अभी तक रोज़े के बारे में बहुत सारी बातें सुनी, मैं सीधा मौजू के ऊपर आता हूँ। हम तमाम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि रोज़ा तमाम मज़ाहिब में हर वक्त पे किसी न किसी अंग में मौजूद रहा है। दीन इस्लाम में रोज़ा रखने के अलग अख़बार हैं, किसी दूसरे मज़हब में अलग अख़बार हैं, लेकिन रोज़ा वहाँ पे मौजूद जरूर है। अब जब साइंस ने जो है बहुत ज़्यादा तरक्की की तो बहुत सारी तहकीकें हुई और उनसे ये साबित हुआ कि रोज़ा रखने के जहाँ तो आपकी इबादत यही है, लेकिन उसके साथ क्या है कि रोज़े के बहुत सारे आपके पास जिस्मानी फायदे भी हैं, ज़हनी फायदे भी हैं। लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी शख्स समय से रोजा रखता है वो जिस्मानी फायदे को देखकर रोजा नहीं रखता, वो सिर्फ इसलिए रोजा रखता है क्योंकि उसके खालिक ने, उसके मालिक ने उसे हुक्म दिया है और उसके सामने सर तस्वीर में काम करता है, इसलिए वो रोजा रखता है। अब तो साइंस ने बहुत सारी तहकीकें की तो कुछ चीजें सामने आई कि रोजे के जो आपके जिस्मानी फायदे क्या है, तो मैं 2-3 जो मोटे बड़ी बातें आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले हिंदुस्तान के बड़े डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर रंगवानी, हिंदुस्तान के बड़े नामवर डॉक्टर हैं। उनकी किताब है मेरिकल्स ऑफ फास्टिंग। उस किताब में लिखते हैं कि जब इंसान का जिस्म जो है काफी मुद्दत तक कोई खाना अपने अंदर नहीं लेता है तो क्या होता है, आपके जिस्म के अंदर जो जहरीले मादे हैं ना वो खारिज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, जब जहरीले मादे खारिज होना शुरू हो जाते हैं तो जिस्म को अपना सिस्टम चलाने के लिए कोई चीज चाहिए होती है, तो आपका जिस्म क्या काम करने लगता है कि वो जहरीले मादे को जलाना शुरू कर देता है, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जलकर खत्म हो जाती है और आपको बीमारियों से बच जाते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान की जो है एक रिसर्च है, उनका मानना है कि रोजे की वजह से जो है क्या होता है, इंसान का जो वजन है ना वो कम हो जाता है, लेकिन इंसान के हार्मोन के अंदर ऐसी कोई तब्दीली नहीं आती है जिससे इंसान की सेहत पे कोई बुरा असर पड़े। ये 2 तहकीकें होंगी। एक और तहकीक है कि जिस्म का दिफाई निजाम जो है, जो आपका दिफाई निजाम है वो मजबूत हो जाता है। उसकी बड़ी वजह ये है कि जब इंसान अपने जिस्म में कम खाना लेता है ना तो उसकी वजह से ये होता है कि जंक जो है ना आपके अंदर वो बहुत कम को आग खा जाती है, आग को हवा खा जाती है और हवा को आकाश उड़ा देता है। ऐसा कॉम्बिनेशन उस क्रिएटर ने, उस गॉड ने बनाया है और उसके अंदर एक पावर, एक लाइट, एक एंटिटी डाल दी गई है जिसको इस वर्ल्ड में उस पर्पस के लिए भेजा गया। नेक्स्ट प्लीज। और इस बड़ी क्रिएशन में, इस अशुभ मखलूकात में, इस पुतले में 10 डोर्स रखे गए हैं और इसमें जो 10 दरवाजे हैं उनमें से 9 दरवाजे नीचे को खुलते हैं, यानी गॉडली वर्ल्ड की तरफ, और यानी कि वर्ल्ड की तरफ, दुनिया की तरफ, दुनियादारी की तरफ। और वो आपके सामने 2 दरवाजे आंखों के हैं, 2 कान के हैं, 2 नाक के हैं और 2 एक एक्सिटरी है और दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये 9 दरवाजे जो हैं ये आपको उस रूहानी प्रोग्रेस के नीचे की तरफ खींचते हैं। और 10वां दरवाजा जो है वो गुप्त है, जिसको आप नुक्ते सुविधा कहते हैं, जिसको आप लाइट ऑफ गॉड कहते हैं, जिसको आप शिव नेत्र कहते हैं, जिसको आप त्रिपुटी कहते हैं, जहां से जर्नी टुवर्ड्स द किंगडम ऑफ गॉड स्टार्ट होती है। वो 10th डोर है, वो आपकी 2 आंखों के से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट प्लीज। क्योंकि इस माटी के पुतले को, इस 5 तत्व शरीर को आत्मा के साथ दुनिया में भेजा गया है, लेकिन साथ में यहाँ पे जो फूड हैबिट्स, यहाँ पे जो इकोसिस्टम, यहाँ पे फूड वेब और फूड चेन उसको मिली, तो 3 किस्म के फूड दिए गए यहाँ पे, सेंटिएंट, स्टैटिक और म्यूटेटिव। यानी कि तामसिक, सेंटिएंट हो गया सात्विक फूड, म्यूटेटिव हो गया राजसिक और स्टैटिक फूड हो गया तामसिक फूड। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अगर करनी है, अगर अपवर्ड जर्नी करनी है, अगर रूहानियत करनी है, अगर उस गॉड की तरफ हमें पहुंचना है, तो हमें सात्विक
फूड को सबसे द बेस्ट माना गया है, ताकि आपको, आपके शरीर को, आपके माइंड को, आपके बॉडी को वो सारी रुकावटें ना डाले, वो सारी रुकावटें कट हो जाएंगी। अदरवाइज हम नीचे की तरफ खींचते जाएंगे और इस सर्कल से कभी भी नहीं छूट पाएंगे। और साथ में दिए गए हैं 5 थीम्स, इनको मित्र कह दो या इन फोज और फ्रेंड्स, क्या दुश्मन या आपके मित्र, ठग, डाकू या चोर। ठग आपको दिन दिहाड़े लूट लेता है, चोर आपको रात के अंधेरे में लूट लेता है, और डाकू आपको गन की नोक पे लूट लेता है। तो ये आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, ये सबके अंदर है, इस शरीर के अंदर है। और इनको ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, 5 किस्म के डाकू, एडीसी साहब, एएसपी साहब, फैकल्टी मेंबर, स्पेशल इनवाइटी, हियर स्टूडेंट्स, मीडिया पर्सन, वेरी गुड आफ्टरनून। And it is a great occasion for us today that we are organizing this event on spirituality relating to the fasting, and welcome you all. To start with, spiritual philosophy says, Mandir Taade, Masjid Taade. Mandir Taade, Masjid Taade. Taade सब कुछ, मर किसी बंदे का दिल न डाली, रब तेनू माफ ना करेगा। So, fasting and spirituality, let me relate the two. Next slide, please. In this world, we are human beings. We are at the top of the creation. We are called Nar Narani De. We are called Ashuk al Makhlukat. We are having body with the soul in bit. That is, माटी के पुतले में रूह डाला गया। माटी के पुतले में, और माटी का पुतला क्या है? This, as already was said, that the fasting is the old age practice. It started with the creation, and all the religious philosophies, all the spiritual philosophies describe this. Go to the Bible, go to Bhagavad Gita, go to Granth Sahib, or go to Vedic period, we will find this practice. Next. The purpose, the basic purpose of the spirituality, the basic purpose of all these spiritual events is to grow and progress towards the upward journey. The spiritual purpose, the physical health purpose, the mental balance, and above, including this, the national service, Desh Seva, what is called Desh Seva. Next, please. So, spirituality, because our body, as Dr. Saab said and many scholars said, that हमारी body is created by the great engineer, and there is no parallel in this world to that engineer. और उस engineer ने क्या बनाया? पानी, आग, हवा और फायर, आग, हवा और आकाश। कैसी इंजीनियरिंग है? जहां मिट्टी को पानी खा जाता है, पानी को आग का, अल्लाह का बन के रहेगा। और अल्लाह के बनने में सबसे बड़ी यही बात है कि आपके आंख से, आपके हाथ से, आपकी जुबान से, आपकी किसी भी एक्टिविटी से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। जो इस चीज पे कारबंद रहेगा वो अपने लाइफ में जो है वो रिलीजन को इम्प्लीमेंट करके दिखाएगा। इसीलिए एक फिलोसफर ने कहा है कि हमने मुसलमान एशिया में बहुत देखे, लेकिन इस्लाम यूरोप में देखा, क्योंकि अंग्रेज है ना चालाक, उनकी जो बुरी चीजें थी वो हम पर फेंक गए, लड़ते रहो हिंदुस्तान और उम्र भर, और जो हमसे अच्छी चीजें थे वो वहां लेके इम्प्लीमेंट कर गए। तो लिहाजा आपने रोजे की फिलॉसफी बहुत सुनी है। मेरी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारे हीरोज हैं उनको पढ़ा करो। आज आप जो मोबाइल में खो गए हैं ये कुछ नहीं है, और इसमें बहुत सारी गलत चीज़ें भी आती हैं। मीन्स जो आप स्टडी मटेरियल, अगर आप इस्लामी चीज़ भी पढ़ेंगे बहुत सारी गलत झूठी हदीस आपको मोबाइल पर सुनाई जाएंगी।
जिनका कोई तलब नहीं होता है, सही कंटेक्स्ट नहीं होती हो। लेकिन जो हमारे हीरोज़ हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, गांधी जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हमारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं कि जो अपनी सरकारी गाड़ी में अपने बेटे को बाहर नहीं जाने देते थे। यही तकवा था। आज मैं अपनी सरकारी गाड़ी को पता नहीं कितने कितने घर के कामों के लिए यूज़ करता हूँ। तो यही तकवा है, यही परहेजगारी है। आप हीरोज़ की लाइफ को पढ़ो, वो चाहे आपका हीरो क्रिश्चियन है, चाहे वो ज्यू है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, जो बड़ा इंसान गुजरा है, आप उसकी लाइफ पढ़ो। क्योंकि बड़े इंसान पहले बटे, अब तो हमने खुदा को ही बांट लिया ना। अब तो अल्लाह ताला की क्या हालत होगी है। जैसे वो एक टीचर ना, एक जो है स्कूल टीचर था, अपने 2 स्टूडेंट से 2 टांगे जो है वो दबाया करता था। तो एक दिन ये सबने सुना, एक दिन एक स्टूडेंट नहीं आया तो उसको दूसरी टांग भी दबानी पड़ी टीचर की। तो दूसरे दिन वो आया तो उस टांग में सोजश पड़ गई थी। उसने कहा जी इसने बड़े गुस्से से दूसरी टांग, क्योंकि दोनों के जिम्मे 2 टांगें थी, तो वो दूसरे से आया तो उसने उस्ताद को जोर से डंडे की मारी। कहता इसने कल मेरी टांग के साथ नाजायज की है, आज हमने वही खुदा की हालत कर दी है। हम कहते हैं शायद इनका खुदा कुछ और है, उसको गाली दे दो, उनका खुदा कुछ और है, आप उसको गाली दे दो। भाई खुदा तो एक ही, वो तो वही है। इसी तरीके से जो रिलीजियस हीरोज हैं वो भी एक हैं। रामचंद्र जी सबके हैं, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके हैं, वो किसी मुसलमानों के या किसी हिंदू के, किसी को गिने चुने नहीं हैं। To all of you, I, Afreen Iqbal, student of BA second semester, is in front of you to discuss about the impact of fasting on mental, spiritual or physical health. First of all, I would like to start my debate with few lines. नमाजों को ही पढ़ने में नमाजी देर करते हैं, तभी इंसाफ करने में भी काजी देर करते हैं। फरिश्ते रिस्क लाते हैं फजर में उठने वालों का, मगर उठने को हम तो सुबह में ही देर करते हैं। वो अपने हाथ फैलाते हैं इंसानों के आगे ही, मगर अल्लाह से लेने में हमेशा देर करते हैं। जो चाहे हम दुआ से वो बस मिल ही जाता है, जो चाहे हम दुआ से वो बस मिल ही जाता है, दुआएं मांगने में रब से हम ही देर करते हैं। फास्टिंग यानी उपवास। फास्टिंग का मतलब है किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए खाना खाने को छोड़ देना। इसके जो है बहुत सारे इफेक्ट है और ये बहुत आसान तरीका है खुद को हेल्दी रखने के लिए और बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए। इसे जो है सदियों से जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। मोस्टली सभी रिलीजन में फास्टिंग को इम्पोर्टेंस दी गई है। पास्ट में भी बीमारियों को ठीक करने के लिए फास्ट का ही सहारा लिया जाता था और इसको ही जो है दवा समझा जाता था। और ये भी ठीक है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल हीलिंग फोर्स है जो हेल्प करती है बीमारियों को ठीक होने में से। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो लगातार काम करता है, जब हम फास्ट रखते हैं तो कुछ टाइम के लिए उसको रेस्ट मिल जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो है उसको हमारे ऑर्गन्स को टाइम मिल जाता है ठीक होने के लिए और डैमेज सेल की रिपेयर के लिए। बीमार होने पर अगर हम थोड़े टाइम के लिए भूखा रहते हैं तो ये किसी भी दवाई से जो है बढ़िया काम करता है। कहते कुछ जब हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी की सारी एनर्जी उसको डाइजेस्ट करने में लग जाती है। फास्टिंग से इंसान की ठीक होने की स्पीड बढ़ जाती है, बॉडी की अंदर से क्लीनिंग हो जाती है और इससे जो है सोल प्यूरिफिकेशन भी होती है और ब्लड भी प्यूरिफाई होता है। अगर इंसान बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाता है तो जो बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना वो एब्जॉर्ब कर लेता है और रेस्ट जो है फैट में जो है कन्वर्ट हो जाता है, जिससे जो है बॉडी का वजन बढ़ने लग जाता है। ज्यादा फैट की वजह से ब्लड वेसल ब्लॉक होती है और बॉडी में दर्द, सूजन, वोमिटिंग, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल और इवन कैंसर तक का रिस्क बढ़ जाता है। फास्टिंग के बाद बॉडी में एनर्जी बढ़ जाती है, दिमाग फ्रेश हो जाता है, बॉडी में हल्कापन आ जाता है और स्ट्रेस भी कम हो जाता है और क्लियरिटी बढ़ती है। एंड इट ऑल्सो स्ट्रेंथन अवर इम्यून सिस्टम। छोटी छोटी बीमारियों को हम फास्टिंग के थ्रू जो है बिना मेडिसिन के ठीक कर सकते हैं। बगैर ट्रेनिंग के हमारा जैसा अनाड़ी अगर उस मोबाइल को हाथ लगाएगा, उस गाड़ी को हाथ लगाएगा, वो जम्मू जाने के बजाय चिनाब में डूब जाएगा। तो इस नूरी हिस्से को, इस रूह को, जिसको ऊपर वाले ने हमेशा हमेशा के लिए बनाया है, इसी का कंसेप्ट हमें है कि हम इस्तेमाल करते हैं जन्नत में, हम इस्तेमाल करते हैं स्वर्ग कि जो अच्छे कर्म करेगा,
जिसके अच्छे एक्शन होंगे, वो स्वर्ग में रहेगा और वो रहेगा वहां हमेशा के लिए। वहां 2 साल या 10 साल, ये यहां हमारा क्राइटेरिया जो है 60 साल की एज में आपको रिटायरमेंट किया जाता है, वहां ये क्राइटेरिया नहीं है। आपका जो असली इंसान जो है, जब बनाने वाले ने उस इंसान को बनाया, उसको अमर बनाया, उसको हमेशा के लिए बनाया। ये यहां जो मौत होती है वो हमारी खाकी जिस्म की मौत होती है। हम मुसलमान उसको मिट्टी में दफन कर देते हैं, हिंदू भाई उसको जलाकर वो राख में तब्दील होता है, लेकिन वो भी मिट्टी में मिल जाता है। या हम अगर उसको समंदर में डालते हैं, वो भी मिट्टी में मिल जाता है। वो ये मिट्टी वाला हिस्सा जो है मिट्टी में मिल जाता है, और जो असली इंसान जो है वो मरता नहीं है। उस असली इंसान की तरबियत के लिए अब देखिए, अरबपति खरबपति लोग, करोड़पति लोग, लेकिन उन्हें सुकून हासिल नहीं। सुकून अगर हासिल होता है, वो तन्हाई में बैठता है, वो तन्हाई किसी गोशी में बैठता है, और गोशी में बैठकर वो चंद लम्हा या चंद मिनट कहिए आप, वो उस ईश्वर की तरफ, वो उस परमात्मा की तरफ रुजू होता है। कोई हाथ ऐसे करता है, कोई हाथ ऐसे करता है, और वहां वो सुकून पाता है। क्यों? ये ऊपर वाले ने हमारे अंदर वो चीज रखी है कि हम अच्छाई को जानते हैं, हम अच्छाई को पहचानते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उस अच्छाई को, उस नेकी को, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। और जो हमारा जो जाहिरी हिस्सा जो है, ये इसमें हसद भरा है। अभी आपने सुना, इसमें कीना भरा है, इसमें लालच है, इसमें ख्वाहिशात हैं। ये ख्वाहिशात जो हैं, ये उन नेकियों को, उन अच्छाइयों को, जो खैर है, उसको उभरने नहीं। अभी मना साहब ने हमारे सामने कहा कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब यह है कि हम गॉड के सामने अपने आप को सरेंडर करते हैं। जब तक हम अपने हमारे बेजान थे, जस्ट नो वे कई खतरा तो तुम हमारा आया, तुम जिंदगी दी, ये भी कुछ है। 25% कंफर्म, 25% अगेन कंफर्म, सुबह उम्मीद को फिर मार देंगे, 25% अगेन कंफर्म, फिर हम मार देंगे, मीन 75% ट्रू, सिर्फ 25% हमें मानना है। क्या कि हम तुम्हें फिर जिंदा करेंगे और तुम्हारे कर्मों के आधार पर फैसला करेंगे कि तुमने अच्छा किया या बुरा किया। ना हम अपनी मर्जी से इस धरती पर आए, हमें से कोई किसी को पता नहीं कहां में आना है, तो ना हम अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं। यू बिलीव कि अगर कोई ब्लड डे भी होगा, वहां सोचता है किसी न किसी तरीके में बताऊं, जाना नहीं चाहता। जब न मर्जी से आया न मर्जी से गया, तो ये बीच में अपनी मर्जी क्यों चलाई? इसका मतलब यह है उसकी मर्जी को धारण करने का, जिसने हमें यहां पैदा किया, जिसने भेजा, और जिसकी मर्जी, उसी की मर्जी यहां चलेगी, उसकी मर्जी को धारण करने को धन करता है। ये डेफिनेशन क्लियर प्लीज? समझ आ गया? ईश्वर की, उस मालिक की मर्जी से, जिसकी मर्जी से हम यहां आए, और उसी की मर्जी को धारण करने को धन कहते हैं। ये मैंने क्या किया? प्यार का शब्द हर आयत में, प्रेम का अमृत हर श्लोक। अब मैं श्लोक बताता हूं आपको, ये कंफर्म करने के लिए कहते हैं प्रयोजन जास्य स्वस्थस्य स्वस्य रक्षणार्थं प्यार प्राण प्राण निवेश या जीवन मान सकते। एक इंसानों, एक मनुष्यों, प्राण हमने तुम्हें दिए, प्राण तुम्हें वापस ले जाते, निवेश या जीवन मान सकते। तुम क्या जानवरों की तरह क्यों यहां चलते फिरते हो? जीवन मानसो का इंद्रियन संचार, वो भी इंद्रियों में इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? इंद्रियन संचार, प्रेरणा, तुमसे प्रेरणा भी तो लो। प्रेरणा, जब प्रेरणा लोगे तो धारण, तो अपने जीवन में उनको धारण करो। प्रेरणा धारणम चेत देशांत गति स्वप्ने, कहते ये जीवन तुम्हारे सपने की तरह है। पंचतत्व ये पूरी बॉडी में फैल जाता है। वो एक्चुअली हमें देखना है कि जो भी हम चीजें इंटेक करते हैं, उनका नेचर कैसा है, क्या वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं या नहीं, क्योंकि सेलुलर लेवल पे वो फर्दर डिवाइड हो जाएंगे और उससे हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा।
सो एवरीथिंग इज लिंक्ड, जो भी हम चीजें खाएंगे उसका वैसा ही इफेक्ट हमारी बॉडी में होगा। तो फर्दर हम ये देखते हैं कि ये चीजें हम जानते भी हैं कि कौन सी फूड्स हमारे लिए अच्छी नहीं है, कौन सी फूड्स हमारे लिए खराब है, फिर भी हम खाए जा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि merely accumulation of facts, accumulation of knowledge is not enough. We have to learn by heart. हम उस चीज को अपनी कॉन्शियस चॉइस से जो है उसको समझे। ठीक, तो कॉन्शियस चॉइस से जब हम समझेंगे जो भी हम चीज कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये चीज नहीं खानी है, फिर भी हम खाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बराबर नहीं है, कहीं ना कहीं हमने उनको समझा नहीं है, कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट जो है हमारी बॉडी पे डीप डाउन लेवल पे कितना होगा हम नहीं जानते हैं, तभी तो हम वो चीजें कर रहे हैं। वरना सबको पता है, साइंटिफिक फैक्ट्स भी हैं कि ये चीजें नहीं खानी है, फिर भी हम खाते हैं और उसका जो इफेक्ट है हमारी बॉडी पे रहता है। थैंक यू। Thank you, Professor Raul, for this very scientific, thought-provoking speech. We have the stage for the bouquet distribution now. I kindly come on the dais one by one to receive the floral welcome. And in the beginning, I request our chief guest of the honor, Mr. Chaudhary Dilmeer Saab, to kindly come on the dais and receive the floral welcome from Professor M.K. Mahathir. Thank you, sir. Thank you so much. We also request Mr. Umardeen, sir, Professor, Head of the Department of Chemistry, to kindly present a floral welcome to our guest of honor, Mr. Aftab Alamir, ASP Bhadrawas, sir. Big applause, please. I also request Professor Surinder, sir, to kindly present a floral welcome to our guest. So I also request Professor Video to kindly receive a floral welcome. Big applause, please. I request seminar. A very good morning to good afternoon to all of you. Today I am Nazar Fatima, student of BS Mr. Sakin. Firstly, like to thank the staff member for giving me such an opportunity to speak here. The topic of my talk is impact of fasting on mental, spiritual and physical well-being. So I begin my topic with a beautiful thought. बेज़बां को जब वो ज़बां देता है, बेज़बां को जब वो ज़बां देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनहगारों को रमजान देता है। So, what does fasting mean in Islam? You know much of what we know about Ramadan. And fasting is from what we read in books, maybe lectures we have heard, things we have learned from our parents. And all of that is good, but how many know about Ramadan? Is that to be from the perspective of the Quran. And what is amazing, subhanallah, is that there's actually only one place you need to look in the Quran to see and read what Allah subhanahu wa ta'ala has to say about it. And this is it, Surah Al-Baqarah, verse number 182 or 184 to 187. It's only like 5 verses, that's all. Even though fasting in Ramadan is a pillar from the 5 pillars of Islam. That's all that's said about Ramadan inside the Quran. But what is said, subhanallah, is very meaningful, very beautiful, and it's full of benefit and guidance. So let us look at the verse, one of those verses where Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhalladheena amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladheena min qablikum la'allakum tattaqun. O believers, fasting was prescribed upon you, just like it was for those before you. So that perhaps or in order to allow you to attain something called taqwa. The scholars of Tafsir like Ibn Usaymin, Ibn Ashur said
about this verse, really, subhanallah, it is remarkable. First of all, this verse is going to instruct the Muslim Ummah to fast the month of Ramadan. It is going to tell us that fasting is not something good to have been done, but rather something which is obliged upon us. But the verse begins by making a call. Principal sir, faculty members, other dignitaries at the dais, my dear students. Assalamu alaikum, adab and good afternoon. Since I have been asked to put forth the feedback, so gaining the palpable impatience on the faces of the students for having been bombarded with spirituality, Ramadan, its essence, and so many other things. Though 5 minutes will be a shorter duration, with your permission, the organizing secretary, I would like to have a couple of minutes more. I will just intrude into the domain of President Sir. I will take a few minutes more. Normally, you know, having the experience at my back, I have been speaking to the student community for the last 10 years. Way back in 2013 when I was SP Crime Branch in Kashmir. And from that forward, the young, impressionable minds, whom I invariably refer to as, you know, unburned, unwritten CDs, because at the age of ours, we have so many preoccupations in the hindsight, in our memory, that refrains us from having innovative ideas. But you, my daughters, and other students, my sons, you put forth such innovative ideas while from we can pick up the thread and take it further. Much has been said about the essence of fasting, be it related to Ram Navami or Ramadan. If I am permitted to derive from it a single word, that is restraint. From the discussion we have had, what we have come out with is restraint. You know, we have been provided with delicious foods, lawful food, and for the sake of Allah, for the sake of Almighty, from dusk to dawn, we refrain ourselves from eating it. That is the first part of it. So, the crux of the message that we are having today is restraint. दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं आप बच्चों का। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हम यहाँ पर अच्छी बातें सीखेंगे वो हम अपने घर में जाकर भाइयों को, बहनों को, परिवार को सबसे शेयर करेंगे और उन पे चलने का हम अमल करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। Professor M.K. Maha, sir, thank you for your wise words. And yes, we have to surrender actually. But surrender is not possible only by writing it, and by saying it, we have to do it. And as I said that in the beginning, that to set the notion right, I just said we have a doctor with us. He will tell us that fasting is said that if I say somebody that why are you fasting, he said that my cholesterol will be fine now. Someone said that my liver is got to be okay. Someone said that my BP is high, it's got to be normal after this. I'm treating my diabetes. But besides treating the disease of body, as I said, that this notion should be that we should also treat the disease of soul. This is very important. Otherwise, we will create Hitlers. Hitler was from a good university. And if you see the Ronald Reagan from American president, these all people are from wonderful universities. But what is the end result? Ronald Reagan ended up killing 2.5 million black people. Hitler killed some 6 million Jews. So, if you do not go inside, as I said, that the notion should be that we should look into inside. So, with these words, I request Professor Mushtaq Ahmed Bhatt sir, head of the Department of Persian, for the inaugural address. अभी हमने सुना था यहाँ पे एक स्पीच चल रही थी, सर ने भी मुश्ताक सर ने भी बताया था कि जब मरते हैं मिट्टी में और बाकी खाक हो जाती है और बाकी चीजें,
तो ये पंचतत्व का शब्द जो है साधारण शब्द भगवान ने हमें समझाया है। पूरी धरती पर अगर पूरे जड़ा है तो भगवान के नाम पे ही है। और ना भूमि, वहां से भूमि, इस भूमि पर हम रहते हैं उस भगवान की बनाई हुई। गा से गगन, वहां से वायु, अ से अग्नि, न से नीर जल, ये पांचों कंपोनेंट हम इस्तेमाल करते हैं। हम इसके बने हुए हैं पांचों कंपोनेंट्स। आज भी वही इंटरनल एनवायरमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट सेम, इसका बैलेंस है, बैलेंस बना के चल रहा है। तो निमेश दिया जीवन मानसों का इतने सरकार जो इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? प्रेरण धारण देशों के पंचतत्व, पंच तत्व से धीरे वो भी एक दिन भूल जाएंगे। दृष्टस्य, लेकिन ये उन्हीं को नजर आता है जिनको दृष्टि है, जिनको दूरदेशी है। दृष्टस्य दक्ष है, नहीं लालची वाले नहीं चलेंगे। दक्षा करते हैं जो अपने हाथ को खुला देते हैं, फैला देते हैं। इसलिए कहा ना, फास्टिंग के साथ साथ तुम्हें ज़कात भी देनी है, अपना माल भी खर्च करना है। अपने जिस्म की ज़कात दो, तुम अपनी भूख को ज़कात दो। एक किस्म की भूख अपने जिस्म को जो है ये खाना पीना जो आप छोड़ रहे हो। ना हो सके, लेकिन जब भ्रमण करोगे, चलो फिरोगे, तो बहुत सारी वो भी निशानियां तुम्हें मिलेंगी। तो क्या कहा, एक खुदा के सब बंदे हैं, एक आदम की सब औलाद, तेरा मेरा खून का रिश्ता, मैं भी सोचूं तू भी सोच। प्यार का शबनम हर आयत में, प्रेम का अमृत हर श्लोक, फिर क्यों इंसान खून का प्यासा, मैं भी सोचूं तू भी सोच। लेकिन आप भी तो सोचो। संसार के समस्त धर्मों ने किसी न किसी रूप में व्रत और उपवास को अपनाया है। व्रत के आचरण से पापों का नाश, पुण्य का उदय, शरीर और मन की शुद्धि होती है। क्या यही चीज मुसलमान भाई भी मानते कि रोजे से हमारा ये साफ हो जाता है? यही चीज अगर यहां पे लिखी हुई है तो ये हिंदू बन गई। भाषाओं के बदलने से ईश्वर बदल जाएगा। अब हमें चेंज होना पड़ेगा, हमें सुधरना पड़ेगा। हमें ज्ञान, वो मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ऊपर पहला शब्द ही जब अवतरित हुआ, शहर रमजान है कुरान, ये वही तो महीना है जिसमें कुरान उतरा। तो कुरान में प्यारा वर्ड कौन सा उतरा? आसमान नीचे धरती और बीच में तू चक्की तरह पीस रहा है। सुख दुख हरकत, नानक दुखा सब संसार। हर कोई दुखी है, हर कोई किसी को औलाद का दुख है, कोई जेल में है, कोई पागल खाने में, कोई हॉस्टल में, कोई डिफरेंट जगहों में हम सफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इस प्रोग्रेस को, हम इस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, इस बात को फॉलो अप नहीं कर पाए। हम उस गाइडिंग रास्ते को फॉलो अप नहीं कर पाए। सो यहां पे फास्टिंग, आज से पहले हमें अगर पीछे चला जाए हम ट्रेडिशन में, तो हमें हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम नहीं मिलती थी, हमें बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज नहीं मिलते थे। बट अब क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से भी हम बाहर निकल गए, हम उस ट्रेडिशन से भी बाहर निकल गए, तो आज हमें ये सारी प्रॉब्लम ये सारी प्रॉब्लम जो जिस फास्टिंग का ये पर्पस है कि फिजिकल बेनिफिट, हमारा डिटॉक्सिफिकेशन, हमारा हार्ट का प्रॉब्लम, कैंसर का प्रॉब्लम या नेचुरोपैथी हो सकती है, तो इन सब का रेक्टिफिकेशन फास्टिंग हमें हेल्प करता है। बट क्योंकि ये प्रॉपर हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो हमें ये सारे डिजीज फॉलो करने पड़ते हैं। फास्टिंग में अगर हम देखें तो फास्टिंग के बहाने हमारे बहुत सारे लेडीज या जेंट्स कोई भी फास्टिंग करता है, तो यहाँ पे एक किस्म का जिस तरह तैयारी होती है, गुड़ एंड जागरी दी जाती है, जिसमें प्रोटीन और आयरन मिलता है। और हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में प्रोटीन और आयरन की कितनी डेफिशिएंसी है। तो इसी तरह नवरात्रा हो, रमजान हो, एकादशी या डिफरेंट फास्टिंग रखी जाती है। नेक्स्ट प्लीज। सो मेंटली अगर हम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, अगर हम रूहानियत पे चलते हैं, तो हमारा मेंटल पीस, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। क्योंकि हमें हुक्म दिया गया है कि अफसोस, हमें हुक्म दिया गया है कि अफसोस नकली मंदिर मस्जिद में जाए साकन दुख उठाने के लिए। अफसोस नकली मंदिर मस्जिद में जाए साकन दुख उठाने के लिए। कुदरती काबे की मेहराब में जा, सुने तकी गौर से तू
दूर आ रही है धुन तुझको सुनाने के लिए, कुरान में लिखा है तुझको समझाने के लिए। हमें ये हुक्म दिया गया है कि ए इंसान, तूने अपनी बनाई हुई पत्थरों की दीवारों की, अपने ईंट और पत्थरों की मस्जिद मंदिर का बहुत ख्याल रखा, लेकिन मैंने जो अपनी क्रिएशन की थी, मैंने जो मस्जिद बनाई थी, मैंने जो मंदिर बनाया था, तूने उसका ख्याल नहीं रखा। इसलिए लेट मी डिसाइड टू कम आउट ऑफ द रिलीजियस बैटल। हमें beautiful recitation of the holy verses of the Quran. Ibn Qayyim al-Jawzi, one of the medieval scholars, says that three things are challenging to the education system. One is greed, second is lust, and third is power. Every age has its own crisis. And if you look into the Immanuel Kant, one of the German philosophers, he says that the crisis of my age is the spiritual crisis. If you look into Imam Ghazali, one of the medieval scholars, he also says that the crisis of my age is the spiritual crisis. So I think we are living in the same time. The crisis of this age is spiritual crisis. So as I said, the notion right that fasting, it burns the three things. One, it burns the envy, it burns inside you the jealousy, it burns inside you the hatred, and it also controls your power, it controls your lust, and it also controls your hunger. So with these words, I request Professor M.K. Manhas for the welcome address, please. Good morning. श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का एक श्लोक है जो प्रभु कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में बताया। उसमें अगर देखा जाए तो मुझे लगता है सुना भी है, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, इस कायनात में हिस्ट्री से लेकर आज तक जब से दुनिया शुरू हुई है, सबसे ज्यादा डिप्रेशन वाला कोई रहा है वो अर्जुन रहे। अर्जुन महाभारत में युद्ध में मैदान जंग में वो थे, उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए, वो डिप्रेशन में चले गए। उस डिप्रेशन से उनको बहाने के लिए और जंग करने के लिए आमादा करने के लिए प्रभु कृष्ण ने उनको भगवद गीता सुनाई। उसमें लास्ट में एक श्लोक है, जब वो श्लोक उन्होंने बताया तब अर्जुन ने अपने हथियार उठाए और जंग करना शुरू किया, और परिणाम आज हमारे सामने है। उन्होंने पापियों का नाश किया और धर्म की दीवार की स्थापना की। वो श्लोक है, सर्वधर्माने परित्याजे मैं लेकर शरणम वृक्ष आहम त्वाम सर्वपापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इंग्लिश में लिविंग मिस्टर अर्जुन को कहते हो, Arjun, leaving all the actions and deeds aside, surrender before me. I will liberate you from all the sins. Don't worry. लास्ट में गारंटी देते हैं, डोंट वरी, डरो मत। इसका मतलब सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सब पापों से मुक्त करूंगा। यहाँ धर्म का मतलब कर्म है, एक्शन है। Whatsoever we do, that is our. And staff members and dear students, a very good morning to all of you. Today, as all of you know, we are having a seminar on impact of fasting on our mental, physical, and social well-being. So, before saying on fasting, I would like to share some divine wisdom with you. In Bhagavad Gita, Shri Bhagavan Krishna says to Arjun, whatever you choose in your life, whatever the choice is yours, anything you choose in your life, कर सकते हैं। फास्टिंग के थ्रू हम स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए फास्टिंग को रिचुअल्स के साथ जोड़ा गया है ताकि सभी इंसान जो है कंपलसरी फास्ट रखे। इसके बहुत बेनिफिट्स है। फास्टिंग के बाद हमें जो है ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है, इससे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड पड़ेगा और हमें जो है फास्टिंग से कोई फायदा नहीं मिलेगा। और मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि हम सबको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए और नमाज पढ़ने की। नाउ आई वुड लाइक टू एंड माई डिबेट विद फ्यू लाइन्स। कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हो कल से पढ़ेंगे नमाज, रोज कहते हो कल से पढ़ेंगे नमाज, कल आंखें ना खुली तो क्या करोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। In the name of Allah, the most beneficent, merciful, respected, honorable personalities, principal sir,
other staff members, professors, and my dear colleagues. A very warm good afternoon to all of you. It's truly an honor to speak on this precious occasion. I'm very thankful to all my professors for giving me this golden opportunity. As we all know about the fasting, which make us to realize about the different conditions whenever the people suffer from them the most. These days are those days in which real form of humility is recognized. As Allah said in Quran, Surah Baqarah, ayat number 185, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم يشكرون. The month of Ramadan, in which was revealed the Quran, a guidance for people, a clear proofs of guidance, and a criterion. Allah intends for you is, and does not intend for your hardship, and wants to complete the period and glorify Allah for that which He guided you, and perhaps you will be grateful. फरिश्ते कह रहे हैं ये परवरदिगार से, फरिश्ते कह रहे हैं ये परवरदिगार से, सूरज शिकस्त खा गया है रोजेदार से. Fasting is observed to be distance from the negative activities, realization about right and wrong, maintenance of friendly relationships, maintenance of discipline, maintenance of brotherhood, and innovation in right actions. In every religion, fasting is observed for acquiring positive awareness. It creates a sense of realization about poor, about those who don't have anything to eat, about those who don't have anything to drink, to eat, to shelter. That's why every religion prefers the procedure of fasting. Because by fasting, we realize about those. Respected Aftab Sahab, ASP Badarwa, Dr. Muhammad Arshid Sahab, Principal Sahab, यहाँ पे तशरीफ फरमा फैकल्टी मेंबर्स और अजीज बच्चों और बच्चियों, आपने पिछले 2-3 घंटे से बहुत ही डिटेल में और रोज़े की फ़िलासफ़ी को सुना, इसका हेल्थ पे क्या असर होता है, क्या बेनिफिट हैं, और डिफरेंट रिलीजन्स में फास्ट था और है, हर एक रिलीजन में है. आपने इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो सुन लिए. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ एक चीज़ आपको दूसरी साइड ले चलूँगा कि रोज़े के कुछ नुकसानात भी हैं. वो ये हैं कि जैसे रमज़ान में आपकी नेकियों का रेट बढ़ जाता है, गुनाहों का रेट भी बढ़ जाता है. अगर रोज़ा रख के आप कोई ज़रा सी भी गलती कर रहे हैं, उससे आपका रोज़ा ही नहीं टूटेगा, उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा मिलेगी. लिहाजा जो आपको मेरे पेशरो एसपी साहब ने रेस्ट्रेन का कहा, इसमें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रेन की ज़रूरत है. एक्शंस नहीं, थॉट्स से भी रेस्ट्रेन कर रहा है. एक्शन से तो रेस्ट्रेन करना ही करना है. आंख का भी रोज़ा, ज़बान का रोज़ा जैसे आपने सुन लिया, लेकिन थॉट्स का भी रोज़ा है. प्योरिटी ऑफ माइंड भी होनी चाहिए. वन थिंग. दूसरा, आपने तकवा सुन लिया कि रोज़े से तकवा पैदा होता है.
और तकवा क्या होता है, जिसको सिंपल वर्ड में यही आप रेस्ट्रेंट कहें या परहेजगारी कहें। ये आज नहीं है, आज से पहले बहुत था। और आप अजीब एग्जाम्पल सुनेंगे कि तकवा क्या है और रेस्ट्रेंट क्या होता है। अगर आप बहुत पहले बहुत पीछे जाएंगे, मैं हिंदू रिलीजन की सिस्टम में लाके दिखाया है, वहां आपको चीज वहीं की वहीं पड़ी ही दिखेगी। दिन भर पेपर वहां पड़े होंगे, बंदा खुद आएगा वहां पैसे डालेगा, पेपर उठा के ले जाएगा। चोरी बिल्कुल नहीं। यही तकवा है, यही परहेजगारी है और यही आपने रेस्ट्रेन करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज क्यों नहीं है। और जैसे एक बच्ची ने यहाँ करप्शन को भी टच किया, यही चीजें हैं। अगर आप रोजा रख के करप्शन का पैसा आ रहा है, उस रोजे का तो ऊपर वाले को फायदा ही कोई नहीं। अगर आप रोजा रख के सूद खा रहे हैं, कोई फायदा नहीं। अगर आप रोजा रख के कोई भी गुनाह कबीरा, या इसमें तो सगीरा भी नहीं, कबीरा मीन्स के बड़ा गुनाह, अगर आप किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, अगर आप सरकारी चीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तो रोजा नहीं हो सकता। क्योंकि जो जन्नत है वो बहुत कास्टली है। जितना हम सस्ता इसको समझ रहे हैं, इतनी सस्ती नहीं है। आपको इतनी सस्ती एयर टिकट नहीं मिलती है, एसी ट्रेन की टिकट, तो जन्नत कहां से मिलेगी? उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना है। और सेक्रीफाइस के लिए यही वैल्यूज जो हैं, जब तक हम प्रैक्टिकल लाइफ में और सोसाइटी में नहीं उतारेंगे। ठीक है, मैं मौलवी भी हूँ, मैं पंडित भी हूँ, मैं अजान भी देता हूँ, मैं कुरान पाक की आयतें भी पढ़ता हूँ, मैं रोज़े भी रखता हूँ, लेकिन मैं जहन्नम में भी जा सकता हूँ। आज थोड़ी सी डेफिनेशन बदल गई। आज के लोग कहते हैं मैं ठीक हूँ, वो गलत है। पहले ये नहीं होता। पहले ज़माने में लोग कहते थे नहीं मैं तो बहुत गलत हूँ, शायद तू मुझसे ठीक होगा। क्यों? वो कहता था शायद ऊपर वाले की नज़र में तू ठीक होगा, मेरे तो पता नहीं कितने गुनाह हैं। और एक बुजुर्ग को एक बादशाह ने एक बार पूछा, उसने उसको बहुत टीजिंग अल्फाज में कहा कि बोल भाई तू ठीक है या मेरा कुत्ता अच्छा है। अब इसको था कि बुजुर्ग रिएक्ट करेगा। फिर रेस्टोरेंट की बात आई जो एसपी साहब ने कहा, उसने एक बुजुर्ग को जो है वो गुस्सा दिलाने के लिए कहा कि तू अच्छा है या मेरा कुत्ता अच्छा है। उसने आगे से कहा देख, अगर तो मैं जन्नत में चला गया तो मैं अच्छा, अगर मैं जहन्नम में गया तो मुझसे तेरा कुत्ता अच्छा है। ये कोई गारंटी नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई मुस्लिम है तो वो जन्नत में जाएगा। नहीं, जो अच्छा काम करेगा, जो ईश्वर का हो। खून का प्यासा, फिर क्यों इंसान खून का प्यासा? अभी सोचा आपने आज वहां पे क्या हो रहा है, रशिया क्या कर रहा है, वो भी तो इंसान है। हमारा दर्द, हमारे सीने में दर्द है। हम ये भूख जो है, जो फांसी की बात चल रही है, तो ये फांसी में दर्द पैदा करना है। भगवान को, अल्लाह को हमारे भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। एक खुदा के सब बंदे हैं, एक आदम की सब औलाद, तेरा मेरा खून का रिश्ता। मैं भी सोचूं, तू भी सोच, प्यार का शब्द हम हर आयत। अभी सर ने एक बहुत जबरदस्त आयत का मफहूम पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2, और आयत नंबर है वो 196। वही सवाल का इबादत करीब, वही सवाल का जब तुझे पूछेगा, मेरा परवरदिगार कहता है जब बंदे तुझे मेरे बारे में पूछे, मेरा सवाल का इबादत तुझे कौन करीब हूं, ऊंची बुता दाई ना दानी जी को चाहिए तो वो भी तो मेरी माने। मैं जवाब देता हूं, मैं करीब हूं, मैं सुनता हूं, मैं जवाब देता हूं, चाहिए वो भी तो मेरी माने। अब यहां बात आती धर्म। धर्म की परिभाषा हमें समझनी चाहिए। पहले धर्म होता क्या है? धर्म का अर्थ है वेदो धर्मो अखिलो मूलम, वेद ही धर्म के मूल है। धारण, इच्छाओं के धारण करने को, हम अपनी इच्छाओं को धारण करते और अपना धर्म अलग बना देते हैं। इसीलिए बहुत सारे दुनिया में अलग अलग आप देखते हैं धर्म, वरना
पवित्र कुरान ये कहता है कई तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कैसे तुम इनकार करते हो? कई तकफुरून बिल्लाहि, जबकि तुम थे ही नहीं, तुम्हारी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे पहले तुम कहां थे? जस्ट इमेजिन वेयर यू इंसान। और इस जिस्म के दो हिस्से, एक ये खाकी हिस्सा जो जाहिरी हिस्सा है इंसान का बदन, ये इसका खाकी हिस्सा है। अभी आपने सुना इंसान को मिट्टी से बनाया गया और इसके अंदर रूह डाली गई है। वो रूह जो है वो आलमे अम्र में बनाई गई है और वो रूह जो है वो अनमिट है, वो लाफानी है। रूह को फाना हासिल नहीं है। अब मुख्तलिफ तरीकों से हम मानते हैं इंसान दोबारा दुनिया में आएगा, सभी मानते हैं। वो अंदर वाला इंसान जो है उसकी मौत नहीं। ये जो जाहिरी जिस्म है, ये जो जाहिरी इंसान का बदन जो है, इसके लिए बनाने वाले ने, भगवान ने, परमात्मा ने, खुदा ने इसी मिट्टी से इसके लिए गदा रखी है, इसकी परवरिश के लिए, इसकी नशोनमा के लिए। हम देखते हैं हमारी जितनी भी खुराक कहां से आती है, वो मिट्टी से आती है। क्यों? ये जाहिरी जो हमारा वजूद जो है ये मिट्टी से बना है, इसलिए बनाने वाले की शान ये है कि उसने हमारी सारी जरूरियात जो है इसी मिट्टी से पैदा की हमारी। हमने अभी सुना, हम एक बेजान चीज को, हम एक बेजान दाने को, एक मक्की का दाना लीजिए या गंदुम का दाना लीजिए या दाल का दाना लीजिए, वो बेजान होता है। उसको हम सुखाते हैं, उसके अंदर जान नहीं होती। जब हम मिट्टी में उसको डाल देते हैं, उसको बोते हैं, ये उसी की कारीगरी है, ये उसी की शान है कि 5-10 दिन के अंदर फिर उसमें पौधा निकल आता है। एक दाने के 700 दाने निकल आते हैं। ये किसका काम है? ये उसी का काम है। ये टॉपिक ही रूहानियत की तरफ जाता है, स्पिरिचुअलिटी और फिजिकल। अब ये जिस्मानी हिस्सा इसका जो है, इसकी सारी जरूरियात इसी मिट्टी से पैदा की हैं ऊपर वाले ने, और इसका जो नूरी वाला हिस्सा है, इसका जो बातनी हिस्सा है, उसके लिए भी परमात्मा ने, उसके लिए भी खुदा ने असबाब पैदा किए। हम कोई चीज, आज का इंसान कोई चीज तैयार करता है, कोई कंपनी कोई चीज तैयार करती है। आप मोबाइल को लीजिए, आप गाड़ी को लीजिए, आप दूसरी किसी चीज को लीजिए, चीज बनाने के साथ साथ कंपनी या वो इंसान जो है, और हमें अशरफुल मखलूकात कहा गया है। इस यूनिवर्स में, इस कायनात में इंसान के अलावा लाखों मखलूकात हैं। हम समंदर की तह में अगर जाएं, हमारी वो आंख नहीं है, लेकिन जिनकी वो आंख है, जो उस फील्ड में महारत रखते हैं, वो उन हशरातुल अर्ज को या उन समुद्री और बहरी उन कीड़ों मकोड़ों और जानवरों को देखते हैं। इन्हीं समुद्रों में एक मछली है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, जिसकी खुराक का कोई अंदाजा हम कर ही नहीं सकते, उसका खुराक, उसकी खुराक कितनी है। ये तमाम मखलूकात हैं, ये सूरज, ये चांद, ये बहरोवर, ये जमादार, ये नबातात, ये चरिंदो परिंद है। लेकिन इन सब के अंदर जिन्नात हम इस्तेमाल करते हैं। जिन्नात भी एक हमारी तरह मखलूक है, लेकिन फरिश्ते, एंजल, जो हमेशा खुदा की इताअत में है, जिनसे कभी कोई गलती का सुदूर हो ही नहीं सकता है। लेकिन इन सब मखलूकात के बावजूद इस इंसान को क्या कहा गया है? ये हजरत इंसान है, ये अशरफुल मखलूकात है। खलकनल इंसान की आसन तकवीम। कायनात का खालिक कहता है मैंने इंसान को एक बेहतरीन सांचे में पैदा किया है, एक बेहतरीन। इसका कोई जवाब नहीं। इंसान का वजूद कहां से शुरू होता है? अगर हम देखें, इसका वजूद शुरू होता है खाक के जरूर से, मिट्टी के जरूर से, पानी के जरूर से, हवा के जरूर से। फिर मां बाप का एक मिलन है, एक मखलूक कतरे से इंसान वजूद, मखलूक कतरे जिससे हम हकीर समझते हैं, जिससे हम गंदा समझते हैं, उससे ये हजरत इंसान इसकी तख्लीक होती है। ये उसका सबब है। और फिर मां का रहम, फिर मां का शिकम,
देखिए, एक अंधेरी काल कोठड़ी, जहां हवा का कोई गुजर नहीं, जहां रोशनी का कोई गुजर नहीं, जहां हम अपने तरीके से खुराक नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये किसकी कारीगरी है? वहां से इंसान जो है वो इंसान निकलता है। वहां से जानवर भी निकल सकता है, वहां से बंदर भी निकल सकता है, वहां से हाथी भी निकल सकता है, लेकिन वहां से इंसान निकलता है। तो अगर हम इंसान हैं, हमें अशरफुल मखलूकात कहा गया है, तो हमें अपने मकाम को पहचानना है। हम अपने मकाम को कैसे पहचानें? यही रोजा, जिससे हर दौर में, जब से इंसान इस धरती पर आया, जब से इंसान का वरूद इस धरती पर हुआ, जब से खुदा ने, परमात्मा ने इंसान को इस जमीन पर लाया। Of the Creator who made his beautiful creations, honorable chief guests, respected faculties, and my dear friends, I welcome all of you with a greeting. May peace, mercy, and blessings of the Creator be on all of you. Today, the topic of my talk is similarity between upvas and song. Its impact on the spiritual and physical well-being. So can we twist this one so that I can see over there and so that I can, yeah. Thank you. So next slide please. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. This chapter number 2, verse number 183, is very important to concentrate upon some Arabic words, because this session is very interesting. That now this seminar is being conducted by the Arabic and Persian department. So very important points which I would like to share. So let us see. Ya ayyuhallazina amanu, इन लोगों जो ईमान लाए हो, जो आस्थावान हो, तुम पर रोजे फर्ज कर देंगे, तुम पर रोजे फर्ज कर देंगे। कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस पॉइंट इज टू बी हाईलाइटेड। अमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। सो लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बनो। माय पॉइंट ऑफ कंसर्न हियर इज दैट कि इससे पहले कब रोजा फर्ज थे। सो लेट अस कम टू द पॉइंट नाउ। सिमिलरिटीज, अभी नेक्स्ट में सिमिलरिटीज शेयर करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट द फर्स्ट प्रॉफिट। इस्लाम वाज नॉट द फर्स्ट रिलीजन। इट मींस दिस कुरान इज द फाइनल एडिशन। There were previous scriptures also. So it means similarly the रोजे के वो पहले भी फर्ज थे। अब हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। एक खुदा के सब बंदे हैं, एक आदम की सब औलाद। अभी हमारे सर ने भगवद गीता के चैप्टर नंबर 18 और श्लोक नंबर 66 में बताया था कि एक खुदा के सब बंदे। It protects us from the mental disorder, spiritual disorder, skin disorder, and other diseases. Like we have a major disease in the crutch. Each and every youngster are being addicted to the drugs, to the intoxicant drinks, which are detrimental to the life. Allah said it is forbidden to be practiced, and one who gets inside will be extremely harmed in this world and into the eternal one. Ramzan doesn't mean to enjoy the delicious items in the iftari, in the sahri. Because the lack of time, I will try to finish this speech. Thank you for today. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات
Now I will translate these verses from the Holy Quran. बस अल्लाह की तस्बीह करो, भगवान की या गॉड की तस्बीह क्या करो जब तुम सुबह करते हो और जब तुम शाम करते हो, और उसी के लिए हम्द व सना और तारीफ है आसमानों में और ज़मीन में और दिन के पिछले हिस्से में, और जिस वक्त तुम ज़ोहर करते हो। वही निकालता है जानदार को बेजान से और बेजान को जान से, वही ज़िंदगी बख्शता है ज़मीन को उसके मर जाने के बाद, और उसी तरह तुमको भी दोबारा निकाला जाएगा। उसकी निशानियों में से यह है कि उसने तुमको बेजान यानी मिट्टी से पैदा किया है, फिर तुम इंसान बन करके चलने फिरने लगे ज़मीन पर। और उसकी कुदरत की निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही में से तुम्हारा एक जोड़ा पैदा किया, और उसने तुम्हारे ताकि तुम उसे सुकून हासिल कर सको, और उसने तुम्हारे अंदर प्यार और मोहब्बत और हमदर्दी बांट दी है। बिलाशुबा इसमें निशानियां उन लोगों के लिए जो बहुत गौर व फिक्र करते हैं, और उसकी निशानियों में से आसमानों और ज़मीन का पैदा करना है, और तुम्हारी ज़ुबानों का मुख्तलिफ ज़ुबानों का होना है, डिफरेंट लैंग्वेजेस का होना है, और तुम्हारे मुख्तलिफ कलर्स और रंगों का होना है। बेशक इसमें निशानियां उन लोगों के लिए जो नॉलेज रखते हैं, जो इल्म रखते हैं। थैंक यू। सलाम। فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها كذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون। मेहमान खुसूसी जो अभी नहीं पहुंचे लेकिन वेलकम करता हूं जनाब ADC साहब भद्रवा का, जो हमारे DFO साहब चंद्रशेखर जो आज मौजूद नहीं है, वो भी कहेंगे। हम उनका वेलकम करता हूं, और उनकी एब्सेंस में मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसी कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, वो हमारे लिए मोटिवेशन है, आप सबके लिए मोटिवेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उनके लिए तालियां हो जाए। सरेंडर बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है डॉक्टर जरगर साहब का लेक्चर सुना था, पिछले बार आए थे कभी है, तो इन्होंने इतना अच्छा हमें एनलाइटन किया। सरेंडर हम कहते हैं, सरेंडर क्या है?
I surrender my property. I surrender my hands in the name of God. यही कहते हैं. I surrender my property. I surrender my hands. I surrender my eyes. I surrender my everything. But still, I is with us. हर एक क्षण लिखते चले हम नोटबुक पर. अब सुबह से शाम तक लिखते चले. I surrender, I surrender, I surrender, I surrender. लास्ट वाले सेंटेंस में फिर हमारे पास I रहेगा. Until and unless that I is not surrendered, our surrender is incomplete, and as a result, we are not in the world of spirituality. अगर स्पिरिचुअलिटी में जाना है तो हमें सरेंडर करना पड़ेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं आफ्ताब आलम मीर साहब, एसपी साहब भदरवा का. मैं वेलकम करता हूं डॉक्टर मसूद इकबाल जरगर साहब का. मैं वेलकम करता हूं, वाइनी लेकर वेलकम करेंगे, प्रधान सनातन धर्म सभा भदरवा का. मैं वेलकम करता हूं प्रधान अंजुमन इस्लामिया भदरवा का. मुझे लगता है उनको आना चाहिए था, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं हमारा भी, क्योंकि ये नीड ऑफ ओवर है. जो टॉपिक हमारा नीड ऑफ ओवर है. हमारे कुछ बच्चे, चंद बच्चे समाज में कुछ भटक रहे हैं, उनको वहां से सही राह पर गामजन करने के लिए ये फंक्शन करना बहुत जरूरी है. अगेन मैं आपको मुबारक देता हूं सर. मैं वेलकम करता हूं आज के तमाम स्पीकर्स का. मैं स्वागत करता हूं तमाम फैकल्टी मेंबर्स का और नॉन टीचिंग स्टाफ का. और मैं दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं आप बच्चों का. मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हम यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे वो हम अपने घर में जाकर भाइयों को, बहनों को, परिवार में सबसे शेयर करेंगे और उन पे चलने का हम अमल करेंगे. थैंक यू. जय हिंद. So, students to kindly maintain the silence and decorum. We have received some of our dignitaries and some are also waiting for some. But before some of our dignitaries will arrive, we'll start the program. We'll get started. We're already running some 20 minutes late, and we apologize for our dignitaries for running 20 minutes late. So first of all, I with my deep heart sympathies to the people who are caught up in the war right now. And I was watching the news yesterday. It was being said that we may be very close to the Third World War. This is a very bad news. And not only that, we are also very close to what we call the climatic disasters in the world. Two things. And it's because of these two disasters that mankind is, right now very stressed. Stressed because what to do now, how to live the life on this planet now, and who is going to come and teach us to live that sort of a life where we will look deep inside into our soul and do some soul searching and make this planet a better place to live on. Dear students and today's dignitaries, I welcome our ASP Bhadarwa, After Alam Mir sir. Sir, thank you so much for coming over here. I also welcome BDO Mohan Ashraf sir for coming over here. And also welcome Dr. Masood Iqbal sir, Nodal Officer Immunity Boosting Ayush, for coming over here. And I also welcome our President Anjuman Islamia Parvez Ahmad Sheikh sir for gracing the occasion. I welcome in charge Principal Professor N.K. Manhas sir. I also welcome Professor Surinder sir, Professor Sandeep Kotwal sir, Convener Seminar, Professor Mushtaq Ahmad Bhatt sir, Co-Convener of the Seminar, Dr. Riyaz Ahmad, HOD Arabic, other faculty members and students. As I said, this is a very important topic, impact of fasting on mental, spiritual and physical well-being. Why is it important? Because we have been taught in our education systems that economy is very important. From last few years, we have been introducing skill-oriented courses. We have been, selecting open elective courses wherein the focus is more on economy. But at the same time, our education system desperately needs soul searching. It also needs to look from the moral aspect of human being. Otherwise, we might be creating great leaders who will create destruction in this world. But
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भदरवा ने मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर उपवास का प्रभाव विषय पर एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर एडीसी भदरवा दिलमीर चौधरी और एसपी भदरवा आफ्ताब आलम मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर कई छात्रों ने प्रत्येक धर्म में उपवास के महत्व के बारे में बताया। चलो खाना खा लेते हैं ना। इमोशनल डिजायर्स को हमारा क्या करता है, फास्टिंग कंट्रोल करता है। मैं नवरात्रा की बात करी थी, 9 डेज हम क्या करते हैं, व्रत रखते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि ये रोज़ा जो है ये मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ़ कौमों में राइज रहा है और आज भी किसी न किसी तरीके से राइज है। और इस रोज़े रखने से इंसान को जिस्मानी फ़वाइद, तिब्बी फ़वाइद, इसके ज़हनी फ़वाइद और इसके जो रूहानी फ़वाइद हैं क्या क्या हैं, उन पर आज तफसील से रोशनी डाली गई। और बाहर से भी बहुत सारे माहिरीन आए थे, उन्होंने जो है अपने खुतबे से तमाम तलबा को और तमाम सामीन को महसूस किया। सर, जो आज यूटी लेवल का सेमिनार था ये ऑर्गेनाइज किया हमारे मुश्ताक साहब और इनकी टीम ने। एंड दिस सेमिनार इज़ रिलेटेड टू द फास्टिंग, द रोल ऑफ फास्टिंग ऑन द मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल हेल्थ। ये जो फास्टिंग है, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ जो यहाँ पे भदरवा में बाशिंदे हैं यहाँ के, ये बताते हैं कि एक पवित्र महीना शुरू हुआ है आजकल, रमज़ान। उससे पहले नवरात्रास थे। आप खुद भी देख लीजिए, साइंटिफिक तरीके से और रिलीजियस तरीके से दोनों ही जो फास्टिंग के महीने आते हैं या डेज़ आते हैं, ये साथ में ही आते हैं हर बार। और बड़े बड़े जो भी फेस्टिवल्स आते हैं वो भी साथ में ही आते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जो ऊपर वाला भगवान अल्लाह ताला वो सब एक है, हम सबको मिलके रहना चाहिए। इसका रोल ये था आज के सेमिनार का कि इसमें हम एक स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ विचारों के साथ जुड़े रहे। एडीसी साहब भी यहाँ पे आए हुए थे, एएसपी साहब भी यहाँ पे थे, बीडीओ साहब भी यहाँ पे थे और भी नामी यहाँ पे हमारे गेस्ट आए हुए थे। तो रेगुलरली 15 डेज तक रोज़ा रखते 30% उनका शुगर लेवल कम हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। हार्ट वालों को कहते नहीं सची हार्ट रोज़ा नहीं रखना, तो हार्ट वालों के लिए भी रोज़ा जो है या फास्टिंग उपवास जैसे नवरात्रे में रखते हैं या हिंदुइज्म में तो आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हर डे के हिसाब से आप अलग अलग, जैसे शिव भगवान के लिए, गणेश भगवान के लिए या हनुमान भगवान के लिए आप रखते हैं व्रत। हर रिलीजन में व्रत है। अब इसका इंपॉर्टेंस जानना है हमारे साइंस के हिसाब से। मैंने एक साइंटिस्ट लोग हैं, उनकी मैंने ऑडियो सुनी थी, वीडियो सुनी थी। उन्होंने कहा था कि पहले वो इस पर बिलीव नहीं करते थे, वो कभी फास्टिंग नहीं रखते थे, लेकिन जब नोबेल प्राइज़ मिला 2016 में एक साइंटिस्ट को, ऑटो फिगी पर, जिन्होंने बताया कि कैंसर का इलाज है अगर हम फास्टिंग करेंगे 16 से 15 आवर्स तक कुछ